founders of Jewel Box. Jewel Box is a conscious luxury brand और हम fine jewelry बनाते हैं lab-grown diamonds और gold से. We are a 3-year-old brand and in this journey so far we have opened 11 stores. And ये जो मुंबई वाला store है ये हमारा 11th store है, the first one in West India. Very happy to be in this city. It's actually been in our plans for a very long time, and finally that dream and that milestone of ours has realized and materialized. So extremely happy to open this. यहाँ जो collection है, we have kept it absolutely suited to the fast-paced mindset of Mumbai. People are modern. People love minimal stuff. People appreciate craftsmanship and fine designs. And all of that you will see आज यहाँ पे every piece of jewelry is a reflection of that. हमने कुछ special collections भी रखे हैं, which is one of that is Padma cut. So a normal diamond has 57 or 58 facets, जो round brilliant diamond होता है. इस diamond में 80 facets है. तो जो glitter, spark, brilliance है ये diamond की वो normal round brilliant cut से कहीं ज़्यादा है. So Padma cut is one of our signature collections. To my right, you can also see the kids collection, which has 11 stores, yeah. 3 years back. So could you tell us what did you do so right that you made such a large progress, and where did you start your first store, and where are your other stores? So we started from Calcutta, and it was always an omni-channel brand. So हमने अपना website and store साथ में open किया था. Within 1 year, we launched another store in Calcutta, and within 1 year of that, we launched another store in Calcutta. So first 3 stores were in Calcutta. Then I think we were confident that we had hit the right chord and momentum to sort of start expanding in other cities. So in the last 1 year, we've done the expansion out of Calcutta. Delhi NCR में हमारे stores हैं, Gurgaon, Noida and Delhi में. Then we have one in Ludhiana. In East India, we have Guwahati and Calcutta, and down south we have Chennai and Bangalore. मैम मेट्रो सिटी में आपने लॉन्च किया है, मेट्रो सिटीज़ में इंटीरियर सिटीज़ में भी लॉन्च करना है. Absolutely. So plan is to expand pan India across tier 1 and tier 2 cities. हमें ऐसा लगता है कि अभी मार्केट में बहुत क्यूरियोसिटी एंड इंक्विजिटिवनेस है अबाउट लैब-ग्रोन डायमंड्स, बट बहुत सारे सिटीज़ तक अभी तक अनफॉर्चुनेटली ये इस टाइप की ज्वेलरी पहुंची नहीं है फिजिकली थ्रू स्टोर्स. So we see a lot of potential, and we're definitely including expansion in all tier 1 and tier 2 cities by the end of the year. In fact, Ludhiana और Guwahati tier 2 towns होते हैं, so वहाँ पर भी जा रहे हैं. So basically the idea is tier 1 city के metro को website लगते हैं. इसके बाद we'll expand to that region. तो आपके जो 2 डिज़ाइन है, नए डिज़ाइन आपने लॉन्च किया है, तो इसको डिज़ाइन को तैयार करने में कितना समय लगा, कौन डिज़ाइन है, इसे किस तरह डिज़ाइन किया गया है, इसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल बताइए. तो कोई भी सिटी लॉन्च करने के पहले हम एक बहुत थरो मार्केट एनालिसिस करते हैं और परखते हैं कि वहाँ के ऑडियंस के लिए किस टाइप की ज्वेलरी बननी चाहिए. बिकॉज अगर मैं चेन्नई या बैंगलोर का ज्वेलरी यहाँ बॉम्बे में डिस्प्ले कर दूँ तो मोस्ट प्रोबेबली पीपल विल नॉट बी अट्रैक्टेड. सो we do a lot of market research. We try to understand the tastes and preferences of people not just in the city but also in the area, and उस हिसाब से हम अपना कलेक्शन बनाते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज अ डेडिकेटेड मर्चेंडाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग टीम इन हाउस. तो 10 लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इसके ऊपर रिसर्च और प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करते हैं, तब जाके हम उसको. जैसे अभी आप बोल रहे थे 9 कैरेट ज्वेलरी के बारे में, तो उसका आपका क्या परसेप्शन है और उससे क्या लाभ होगा? सो आई थिंक देखिए क्वालिटी ज्वेलरी, फाइन ज्वेलरी सबको चाहिए होती है, बट विद द गोल्ड प्राइसेस राइजिंग पीपल आर नॉट वेरी ओपन टू बाइंग फाइन ज्वेलरी फॉर एवरीडे यूज़. हमने हाल ही में लास्ट वीक 9 कैरेट ज्वेलरी लॉन्च किया, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स नाउ हॉलमार्क बिकॉज गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू कर दिया कि 9 कैरेट कैन बी हॉलमार्क. एंड द आइडिया विद दैट इज़ कि जिनको जो बहुत फैशन फॉरवर्ड एंड ट्रेंडी लोग हैं जिन्हें फाइन ज्वेलरी रोज़ चेंज करना है आउटफिट्स के साथ, आई थिंक दैट इज़ द कोर ऑडियंस फॉर दिस. पीपल वेयरिंग इट फॉर वर्क डे, पीपल वेयरिंग इट फॉर रैंडम हैंग आउट प्लान्स और ये सब. तो उस टाइप की टीटी को हम कैप्चर करना चाहते हैं थ्रू आवर 9 कैरेट.
एंड पूरा कलेक्शन अंडर 20-25,000 के रेंज में है, तो इट विल नॉट पिंच द पॉकेट, आप ले भी सकते हो, इसीलिए आप डिफरेंट ओकेजन्स डिफरेंट वेयर पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ओन कर पाओ। So what is your basic investment and for marketing for this tour, and who are the main target audience? Marketing. सो इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग हम आउटडोर प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया यूज करते हैं। तो अभी ये बॉम्बे में हमारा पहला स्टोर है, अगला मंथ विदिन अ मंथ हम एक और स्टोर कर रहे हैं, इंटीरियर्स उसका चल रहे हैं। दिवाली से पहले हमारा टारगेट है, हम कोशिश कर रहे हैं या दिसंबर से पहले बॉम्बे में 3 स्टोर्स हो जाएंगे। वंस दैट इज डन हमें भी थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है मार्केटिंग को एक्सपेंशन और एग्रेसिवली करने का। फिलहाल हम डिजिटल और ओएच मीडिया को रीजनली यूज करते हैं। जो मुंबई में लॉन्च किया आपने, मुंबई जाना जाता है बॉलीवुड नगरी के लिए, बॉलीवुड के लिए, और हर एक जो ज्वेलरी ब्रांड है उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर होती है। तो आपने कोई आपका ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड से कोई एक्ट्रेस वगैरह करता है? आप बहुत जल्द देखेंगे हमारा एक एसोसिएशन, एंड यस लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर इट विद ऑल। वो है मैं इसमें ये जानना चाहूँगी कि पहले तो आपने मार्केट में किन लोगों के ऊपर ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट किया कि कैसे लोग हैं जो बाइंग कर सकते हैं, उसके बाद इसमें वैरायटी क्या क्या है, मतलब और जो है मार्केट में तो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर हैं, तो उनसे बेटर और उनसे अलग क्या क्या आपके पास है? मैम हमने जब स्टार्ट किया था 3 इयर्स अगो, हमारा विजन यही था कि हम फाइन ज्वेलरी को एक्सेसिबल और सस्टेनेबल बनाएं, कि हर आदमी जिसकी एक एस्पिरेशन या ड्रीम हो डायमंड ज्वेलरी खरीदने की, उसकी ड्रीम पूरी हो सके। तो हमने यही मिशन रखा था, एंड यू नो आई थिंक उसी को माथे में रखकर हमने अपना प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, डिज़ाइन सब कुछ इवॉल्व किया है। द डिफरेंस दैट यू विल सी इन जूल बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर ब्रांड्स इज़ कि हमारी डिज़ाइंस उसी इंक्लूसिविटी को रिफ्लेक्ट करती है, कि अगर आप आए हैं आज हमारे स्टोर में और यहाँ पे आपकी और कलीग्स भी हैं, एवरीवन विल फाइंड समथिंग और द अदर जो उन्हें पसंद आए। तो हमारी डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत ही इंक्लूसिव है, और इसको इस तौर तरीके से बनाया गया है कि जो भी आए उसे कुछ ना कुछ पसंद आए और वो खरीदने के लिए एक्सेसिबल है। और मिनिमम किसी भी ज्वेलरी को बनाने में मिनिमम कितने टाइम्स इसमें लगती है? हम कस्टमाइज भी करते हैं, जैसे आपने बोला अगर आप अपना डिज़ाइन देंगे तो दैट कैन बी मेड एंड डिलीवर्ड टू यू विद इन 3 वीक्स। अभी राखी फेस्टिवल आ रहा है, तो इस तरह की प्लान टू, क्योंकि अभी लेबनॉन डायमंड की राखी वगैरह भी शुरू हो गई है और फिर बहुत ज़्यादा डिमांड में है, अभी प्लानिंग फॉर राखी ऑल्सो। So our Rakhi campaign is actually already live on the website, and here also अगर आप देखेंगे स्टोर में कुछ लाइट ब्रेसलेट्स है और मेन स्टड्स है which are very gift worthy items for राखी, और हमने वो कलेक्शन यहाँ भी रखा है स्टोर में। You have a message ethically responsible and ethically crafted and ecologically. So could you elaborate a little more on how you want to spread that message and what you do exactly? Absolutely. So, lab-grown diamonds as a product are much more sustainable and environmentally responsible than mined diamonds, because the mining does not happen. So there is no water erosion, there is no land erosion, and there is less carbon footprint caused in the whole process. So, because we don't use natural diamonds or any mined products at all of this is man-made and lab-grown. So of course we call ourselves an ecologically responsible brand. When we say ethically crafted, it's more about the environment and the community that we create for the workers who work for the brand. All our craftsmen are meted out with very ethical behavior and opportunities, and yeah, that's basically what we stand for, a fair and responsible brand. Great. Thank you so much for enlightening us. Thank you.